Hello, students. Good morning. This is Manoj Kumar Sharma. Hope you are enjoying your studies at home under this program of Har Ghar Pathshala. Har Ghar Pathshala program was a very good initiative of the Himachal government and is providing the education at your doors. And in this venture, many teachers and a technical team, they are involved and working day and night so that you can be provided the best study material at your home. But students, it's very surprising that hardly 200-300 views are there daily. In spite of working hard for you people are not paying any attention. And this study material has been made by the teachers who are teaching you people. This is not a ready-made matter of the YouTube, but the teacher who are teaching you people at the schools, they are preparing all these videos, beta. All this study material is prepared by those teachers only. And that is according to your syllabus. If you'll pay attention, if you'll be dedicated, I can assure you, you will do better in the board exams. Hope since you'll be benefited from this Har Ghar Pathshala program. But since you should be determined, dedicated. But that dedication is lacking somewhere. And that is reflecting in these video lectures. And वो कैसे वो आपकी रिफ्लेक्ट कर रही है बेटा? Views. The daily views are saying that maximum students of Himachal, they are not just going through these video lectures. Yesterday, hardly 300 views were there in my lecture. So, whereas I think there are your 50,000 around students are there. But no one is paying any attention. Let's start our today's topic. So, I welcome you all in this Har Ghar Pathshala. Students, our today's topic is coordination compounds. Is part 7th of class 12th. Students, today's subtopics are limitations of crystal field theory. बच्चों, आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ा होगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई एंजॉय दिस टॉपिक और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें आपने जैसे हाउ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस एंड you have studied the barycenter rule beta. You have studied the spectrochemical series. So many questions are asked in your exams. Even competitive exam के लिए बहुत important है बेटा. चलिए, next is we'll discuss today some NCERT in text questions beta, which is related to BVT, so that you can understand BVT in a better way. So let's start with the limitations of the crystal field theory. So beta, ये जो crystal field theory थी बेटा, that was quite successful in explaining formation, structures, color and magnetic properties of the coordination compounds. But since इसके बावजूद CFT की कुछ लिमिटेशंस रही बेटा, और वो क्या थी? जैसे आप जानते हैं बेटा कि CFT ने माना कि आपके जो सिंटर मेटल आयन और लिगेंड्स हैं, दे आर जस्ट द पॉइंट चार्जेस. तो इट मीन्स लिगेंड भी क्या एक पॉइंट चार्ज है बेटा. इसका मतलब क्या हुआ
जो आपके अनायनिक लिगेंड्स हैं उनका जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इफेक्ट है बेटा, या उसमें जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इफेक्ट है बेटा, दैट मस्ट बी हाई. इट मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बेटा, बट इट्स नॉट सो. ऐसा नहीं है. आपने देखा बेटा कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो आपके अनायनिक लिगेंड्स है दे आर एट द एंड. जैसे अगर याद है बेटा आपको, मैंने एक ट्रिक दिया था पिछले लेक्चर में, सीसी नियाप बॉफ. सी स्टैंड्स फॉर कार्बोनाइल, सी स्टैंड्स फॉर साइनाइड, नियाप नाइट्रो, एन हो सकता है, नाइट्रो ओ हो सकता है, ई इन, पी पेरिडिन, बॉफ वाटर, oxalate and fluoride, chloride, bromide, iodide. So these anionic ligands are at the end of the spectrochemical series. So beta, these anionic ligands are your weak field ligands. Which couldn't be explained by the CFT. Why it's so? जबकि क्या होने चाहिए थे आपके जो अनायनिक लिगेंड्स जो थे, आपके जो अनायनिक लिगेंड्स हैं बेटा, दे मस्ट बी योर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. क्यों? क्योंकि सीएफटी ने क्या माना कि लिगेंड जो है दे आर जस्ट सो पॉइंट चार्जेस. और नेक्स्ट था बेटा कि सीएफटी ने क्या माना कि जो आपका सेंट्रीमेटल आयन और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज प्योरली आयनिक. And it does not take into account the covalent character of the bonding between the central metal ion and the ligand. जबकि बेटा ये पॉसिबल नहीं है कि कोई बॉन्ड 100% कोवलेंट है या फिर कोई 100% आयनिक है. देयर मस्ट बी सम पार्शियल करेक्टर. सो बेटा दिस वाज द सम वीकनेसेस ऑफ द CFT. Later on these weaknesses were explained by the other theories like ligand field theory beta and molecular orbital theory. But beta, these theories are beyond scope for the time being, because you'll study all these theories in the next class beta. So let's start the questions now, which are important from your examination point of view as well as your understanding point of view. You can understand whatever we have studied till date or what we have studied in the valence bond theory and CFT. So beta, मैंने इन क्वेश्चन को स्टार क्वेश्चन कैटेगरी में रखा है. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन स्टार क्वेश्चंस इन टेक्स्ट क्वेश्चंस. सो बेटा ये जो पहला क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी पेज नंबर 261 पे क्वेश्चन नंबर 9.5 है बेटा. एंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी दैट tetracyanidonicklet 2 ion with square planar structure is diamagnetic and tetrachloridonickel 2 ion with tetrahedral geometry is paramagnetic. So this we have to explain. Since जैसे कि आप जानते हैं बेटा कि जो आपका निकल का एटॉमिक नंबर है दैट इज 28 और इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी 3d8 4s2. और इन दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस में जो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है +2 है बेटा. निकल इन दिस कॉम्प्लेक्सेस हैव +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा. और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे बेटा अचीव करेगा
this will lose these 2 electrons from 4s2 orbital beta, and now the valence shell electron configuration जो रहेगी आपके निकल 2 पॉजिटिव p, that will be your 3d8 beta. So nickel 2 positive ion has outer electron configuration of 3d8 because 2 electrons from 4s orbital they have lost. Now बेटा साइनाइड आपको पता है बेटा कि दैट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, और आपका जो क्लोराइड है दैट इज अ वीक फील्ड लिगेंड. तो बेटा जब आपका साइनाइड जो है सेंट्रल मेटल आयन निकल 2 पॉजिटिव को अप्रोच करेगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 3d ऑर्बिटल्स में, वो क्या हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे, वो पेयर अप हो जाएंगे बेटा. जबकि आपका जब क्लोराइड आयन जो है दैट इज अ वीक फील्ड लिगेंड बेटा, इसके ये जब भी आपका सेंट्रल मेटल आयन को अप्रोच करेगा पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस बिकॉज क्रिस्टल फील्ड स्प्रेडिंग एनर्जी जो है इसमें क्या है, कम है, और जबकि साइनाइड के केस में क्या रहेगी, आपकी ज्यादा रहेगी. सो बेटा नाउ लेट्स से these are the 2 compounds which are given over here, tetracyanidonicklet 2 ion and tetrachloridonicklate 2. So बेटा अब आप देखें निकल here is having atomic number 28, so electron configuration 4s2 3d8 beta. So 4s2 electrons are here in the 4s orbital beta and 8 electrons are there in the 3d orbitals beta. और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा सो एज टू गिव द +2 ऑक्सीजन स्टेट बेटा. निकल 2 की जो ऑक्सीजन आपकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रहेगी फिर वो क्या रहेगी आपकी 3d8. सो 3d इज हैविंग योर 8 इलेक्ट्रॉन्स बेटा. 3d ऑर्बिटल जो है उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, 3d सबशेल रादर उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8. Is that clear? So when this cyanide is approaching this central metal ion, what is happening? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा यहाँ d ऑर्बिटल्स में ये पेयर अप हो जाएंगे. तो ये ऑर्बिटल आपका क्या हो गया, यहाँ वैकेंट हो गया. Is that clear? Now what will happen? One of the d orbital and one of the s orbital and 2 p orbitals they will hybridize together to give you the dsp2 hybridization. क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, 4 ही ऑर्बिटल चाहिए वैकेंट, ताकि आपके 4 साइनाइड molecules हैं they can form the coordinate bond with this central metal ion. Central metal ion will provide the vacant orbitals बेटा, और आपके जो cyanide ions हैं they will provide the filled orbitals. ठीक है, so filled orbitals will overlap with the vacant orbitals here. so बेटा यहाँ क्या कर रहे हैं, cyanide यहाँ overlap कर रहा है, cyanide के जो filled orbitals हैं they are overlapping with the vacant orbitals of dsp2 here. तो ये क्या बना रहा है आपका 4 कोऑर्डिनेट बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है बेटा. और अगर आप यहां देखें ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन दीज 3d ऑर्बिटल्स बेटा दे आर पेयर्ड, सो मींस दैट्स व्हाई इट इज अ डायमैग्नेटिक. whereas the its hybridization is dsp2, it means its geometry is square planar. so बेटा this complex is square planar and जो इसके बेटा मैग्नेटिक बिहेवियर है दैट इज डायमैग्नेटिक. So now let's take the case of tetrachloridonicklate 2. यहां भी बेटा अगर आप देखें निकल 26 है, 28 है बेटा. निकल इज हैविंग योर एटॉमिक नंबर 28. इसकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 4s2 3d8, और ये आपका बेटा 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. और ये क्या करेगा, इट विल लूज दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स. क्यों? क्योंकि निकल की जो ऑक्सीजन स्टेट है यहाँ इस कंपाउंड में दैट इज +2. सो बेटा ये कहां से लूज करेगा, 4s इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज करेगा. तो नाउ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज 3d8 ऑफ द निकल 2 पॉजिटिव आयन. सो बेटा अब ना क्लोराइड इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पेयरिंग नहीं होगी, इसलिए क्या होगा, जो 4 ऑर्बिटल्स बेटा यहाँ इन्वॉल्व होंगे वो कौन से होंगे आपके, एक s और 3 p ऑर्बिटल्स, ये आपके इन्वॉल्व होंगे आपके इन हाइब्रिडाइजेशन बेटा, और दे विल हाइब्रिडाइज टुगेदर टू गिव द sp3 हाइब्रिडाइजेशन बेटा. Now, ये 4 sp3 hybridized orbitals which are vacant will overlap with the 4 chloride ions. Is that clear? So बेटा
टू फॉर्म दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सो अब क्या है, यहाँ दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट मीन्स दिस पैरामैग्नेटिक इन नेचर. और आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3, दैट्स व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स इज टेट्राहेड्रल. सो बेटा नाउ क्वेश्चन वाज कि एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ बैलेंस बॉन्ड. ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी दैट टेट्रासाइनाइडोनिक्लेट 2, टेट्रासाइनोनिक्लेट 2 जो है आपका आयन, दैट इज अ स्क्वायर प्लानर whereas and is diamagnetic. So it's beta square planar and diamagnetic. And tetrachloridoniclate 2, it is tetrahedral and paramagnetic. So tetrahedral and paramagnetic. Hope students this is clear. So this way you can do beta. So बेटा इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपने सॉल्व करने हैं तो सबसे पहले तो देखें कि आपकी मेटल का एटॉमिक नंबर क्या है, उसकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है. देन डिस्ट्रीब्यूट दीज वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट ऑर्बिटल्स बेटा लाइक दिस. एंड देन नेक्स्ट सी की आपकी जो सेंट्रल मेटल आयन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, तो आप उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से गए. अब उसके बाद जब आपका सेंट्रल मेटल आयन को आपका क्या कर रहा है, आपका कोई भी लिगेंड आपका अप्रोच कर रहा है बेटा, उसके बाद देखें कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो कि वीक फील्ड लिगेंड है. स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में आपकी पेयरिंग हो जाएगी और वीक फील्ड के केस में आपकी पेयरिंग नहीं होगी. इज दैट क्लियर. सो बेटा और उसके बाद आप देखें कि कौन से ऑर्बिटल्स, क्योंकि जितने आपके लिगेंड्स होंगे बेटा उतने ही वेकेंट ऑर्बिटल जो है सेंट्रल मेटल आयन प्रोवाइड करेगा. तो बेटा उसके बाद देखें ये कौन से वेकेंट ऑर्बिटल्स आपके प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, कौन से हाइब्रिडाइज कर रहे हैं, और दिस हाइब्रिडाइजेशन विल डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल डिसाइड द, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल डिसाइड द मैग्नेटिक बिहेवियर. अगर सारे के सारे पेयर्ड हैं बेटा इलेक्ट्रॉन्स देन दैट इज ऑफ डायमैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा देन इट इज ऑफ पैरामैग्नेटिक. होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर. सो नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज स्टार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9.6 NCERT पेज नंबर बेटा 261 and the question is tetrachloridoniclate 2 is paramagnetic while tetracarbonyl nickel is diamagnetic. दो बोथ आर टेट्राल, दोनों टेट्राहेड्रल हैं लेकिन एक आपका पैरामैग्नेटिक है बेटा, दूसरा आपका डायमैग्नेटिक है. वाई? ओके बेटा ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है बेटा. निकल की पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है हमने ना. सी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो निकल की बेटा वो क्या है आपकी 3d8 4s2. क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है आपका 28. और टेट्राक्लोराइडोनिकलेट 2 में जो आपकी निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा दैट इज +2, ठीक है, जबकि टेट्राकार्बोनाइल निकल में जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है निकल की दैट इज 0. इज इट क्लियर? बिकॉज इट्स ये जो आपका लिगेंड कार्बोनाइल लिगेंड है बेटा दैट इज न्यूट्रल, ठीक है, एंड दिस इज नॉट हैविंग एनी चार्ज बेटा, दैट्स व्हाई निकल इज हैविंग योर 0 ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है. लेकिन बेटा ये जो आपका +2 ऑक्सीजन स्टेट है इस कम्प्लेक्स में टेट्राक्लोराइडोनिक्लेट 2 में वो क्या करेगा, दैट विल अचीव इट बाय लूजिंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द दिस 4s2 ऑर्बिटल बेटा, ठीक है. सो बेटा 4s और ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये लूज करेगा और जो आपका निकल 2 पॉजिटिव आयन है विल बी फॉर्म्ड बेटा. और जो आपकी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी 3d8. और बेटा अब यहाँ कार्बोनाइल जो है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और दिस इज वीक फील्ड लिगेंड. क्लोराइड आपका वीक फील्ड लिगेंड है तो कार्बोनाइल जब अप्रोच करेगा तो आपका पेयरिंग होगी बेटा, जबकि यहाँ क्लोराइड जब अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल आयन को तो आपकी पेयरिंग नहीं होगी 3d ऑर्बिटल्स में. सो बेटा नाउ लेट्स सी, जस्ट सी बेटा दिस इज टेट्राक्लोराइडोनिक्लेट 2 आयन, दिस इज टेट्राकार्बोनाइल निकल, ठीक है. सो बेटा ये आपका एटॉमिक नंबर 28 है, 4s2 3d8 बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो बेटा 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3d में 8 हैं, तो आपका बेटा अब ये क्या है इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी दैट इज +2. सो निकल 2 पॉजिटिव जो है आपका 3d8 हियर. और आपका यहाँ क्या हुआ, इसने जो इलेक्ट्रॉन लूज किए कहाँ से किए 4s से बेटा, तो आपके डी में कितने रह गए 8 इलेक्ट्रॉन्स. अब बेटा अब जो क्लोराइड है दैट इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो आपकी जब ये क्लोराइड आयंस जो अप्रोच करेंगे बेटा तो यहाँ पेयरिंग नहीं होगी. सो ये कौन से, अब इसको कितने चाहिए, यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका वो कितना है 4 है, बिकॉज 4 क्लोराइड आयन जो है दे आर अप्रोचिंग सेंट्रल मेटल आयन. तो आपको निकल कितने वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करेगा बेटा 4, तो एक s होगा और 3 p होंगे, तो दीज आर द टोटल 4 ऑर्बिटल्स. तो दे विल हाइब्रिडाइज टुगेदर टू गिव यू sp3 हाइब्रिडाइजेशन बेटा.
और ऑर्बिटल्स जो बनेंगे दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। और ये वेकेंट ऑर्बिटल जो है दे विल ओवरलैप विद द 4 फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ द 4 क्लोराइड आयंस बेटा। ठीक है, सो आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ sp3, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है बेटा यहाँ निकल की, तो आपका जो ज्योमेट्री है इसकी दैट इज टेट्राहेड्रल। और यहाँ क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं बेटा देन इट इज ऑफ पैरामैग्नेटिक। इज दैट क्लियर? सो बेटा द फर्स्ट पार्ट दैट इज क्लियर, आई थिंक टेट्राक्लोराइडोनिकलेट 2 इज पैरामैग्नेटिक और टेट्राहेड्रल है बेटा। अब लेट्स सी बेटा टेट्राकार्बोनाइल निकल, यहाँ क्या है, वही आपका एटॉमिक नंबर 28 बेटा। तो इसमें भी क्या होगा 4s2 3d8 बेटा। और आपका इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट है दैट इज 0 इन दिस केस, तो इट इज नॉट गोइंग टू लूज एनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द दिस 4s बेटा। लेकिन कार्बोनाइल जो है दैट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो जब आपका कार्बोनाइल जो है सेंट्रल मेटल आयन को अप्रोच करेगा, व्हाट विल हैपन, ये जो 4s2 इलेक्ट्रॉन्स है दे विल गो इनटू द 3d ऑर्बिटल्स और आपकी यहाँ पेयरिंग हो जाएगी बेटा। जब पेयरिंग हो जाएगी नाउ योर 4s ऑर्बिटल इज गोइंग टू बी वेकेंट। अब ये एक 4s और 3 4p ऑर्बिटल्स क्या करेंगे बेटा, हाइब्रिडाइज करेंगे टू गिव यू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और ये कितने देंगे, 4 देंगे, क्योंकि इसको 4 ही वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए बेटा, सो दैट 4 कार्बोनाइल लिगेंड जो है दे कैन कोऑर्डिनेट विद द दिस सेंट्रल मेटल आयन बेटा। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे बेटा 4। अब नाउ इफ यू सी हाइब्रिडाइजेशन हियर इज sp3। हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुई बेटा, आई थिंक दिस इज क्लियर। सो sp3 है तो बेटा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी बेटा, और यहाँ सारे के सारे t ऑर्बिटल्स आर यू आर हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट्स व्हाई इट इज अ डायमैग्नेटिक। सो बेटा दिस वे यू कैन एक्सप्लेन दिस कि आपका जो टेट्राक्लोराइडोनिकलेट 2 है दैट इज पैरामैग्नेटिक एंड टेट्राकार्बोनाइल निकल जो है दैट इज अ डायमैग्नेटिक। इज दैट क्लियर? Although they are both are having your tetrahedral geometry. Hope students this is clear. So beta in case of any problems you can comment in the lecture beta, ठीक है, and you'll get the response. Next question is star question, question number 9.7 NCERT page number 261. Hexa aqua iron 3 beta, that is strongly paramagnetic, whereas hexacyanidopherrate 3 is weakly paramagnetic. Explain. So students, जो आयरन का यहां एटॉमिक नंबर है दैट इज 26, और दोनों ही केसेस में बेटा आयरन की जो ऑक्सीजन स्टेट है यहां दैट इज +3। ठीक है, जो आपका पहला कॉम्प्लेक्स आयन जो है बेटा आपका दैट इज हेक्सा एक्वा आयरन 3, इसमें जो वाटर है दैट इज अ वीक फील्ड लिगेंड, जबकि हेक्सासाइनाइडोफेरेट 3 में आपका जो आयन में जो आपका साइनाइड है बेटा दैट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सो बेटा नाउ हेक्सा एक्वा आयरन 3 एंड हेक्सासाइनाइडोफेरेट 3 आयन बेटा। अब नाउ यहां देखें आप आयरन का जो एटॉमिक नंबर है 26 बेटा, बैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6 बेटा। तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, देन योर 3d में कितने हो गए बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आयरन जो है यहां आयरन इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ये +3 तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन आपके कहां से गए 4s से गए, एक आपका d से गया। इज दैट क्लियर? तो आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके बेटा तो आयरन इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ हियर द 6 वाटर मॉलिक्यूल्स आर अप्रोचिंग दिस सेंट्रल मेटल आयन हियर। इज दैट क्लियर? Now what will happen? You know बेटा अब यहां जब आपका वाटर जो है दैट इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो आपकी क्या होगी, पेयरिंग नहीं होगी इस केस में। इज दैट क्लियर? सो एक s ऑर्बिटल बेटा और आपके 3 p ऑर्बिटल्स और 2 d ऑर्बिटल जो हैं। इज दैट क्लियर? और वो कौन से ऑर्बिटल्स बेटा, आउटर d ऑर्बिटल्स। इज दैट क्लियर? दे आर इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन हियर। यहां 6 वाटर मॉलिक्यूल्स अप्रोच कर रहे हैं बेटा सेंट्रल मेटल आयन को। तो सेंट्रल मेटल आयन कितने वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करेगा, 6 ही। तो 6 ऑर्बिटल्स के लिए हमें कितने चाहिए, एक s बेटा, 6 ही वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए बेटा। तो एक s हो गया, 3 p हो गए बेटा यहां, और 2 d ऑर्बिटल्स हो गए। तो ये हाइब्रिडाइज करेंगे बेटा टू गिव 6 sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, और ये ओवरलैप करेंगे अब वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, नाउ योर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और यू कैन से आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बिकॉज the outer d orbitals are involved.
और दिस इज ऑल्सो सेट टू बेटा स्पिन फ्री कम्प्लेक्स। अगर कई बार क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव में पूछा जाए, ठीक है, देन यू कैन से कि हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, जिनमें आपके आउटर डी ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व, ठीक है, और आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, अगेन आउटर डी ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व। और बेटा सिंस हाइब्रिडाइजेशन एयर इज sp3d2, तो इट इज ऑक्टाहेड्रल, इट इज ऑक्टाहेड्रल। नाउ जस्ट सी हियर 1 2 3 4 5 unpaired electrons are there, so it is your strongly paramagnetic beta. This is your strongly paramagnetic. Whereas in case of your hexacyanide of ferrite 3 ion beta, यहां क्या है, वो सेम है बेटा, जेट जो आपका एटॉमिक नंबर है इसका 26 है, तो 4s2 बेटा एंड 3d6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। सो आपका इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है बेटा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे हैं, एक आपका डी से जा रहा है, तो आपके कितने रह गए, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स रह गए डी ऑर्बिटल में। और आपका क्या कर रहा है, अब इसको चाहिए बेटा 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स टू प्रोवाइड, सो दैट 6 जो आपके साइनाइड आयंस हैं बेटा, दे कैन कोऑर्डिनेट विद द सेंट्रल मेटल आयन। तो बेटा ये 6 कौन से होंगे, यहां जब ये साइनाइड जो है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक्चुअली, ठीक है, जब ये अप्रोच करेगा तो बेटा यहाँ क्या होगी, ये जो डी ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। सो ना जब पेयरिंग होगी तो बेटा क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल्स डी के 2 रह गए और एक s और 3 p के आपके वैकेंट ऑर्बिटल जो हैं, दे विल इंटरमिक्स टुगेदर टू गिव द d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बेटा। 6 d2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स एंड दे विल ओवरलैप विद द 6 फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ द दिस लिगेंड बेटा, दैट इज साइनाइड हियर, ठीक है। और वो क्या करेगा, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो बेटा दिस जो ऑक्टाहेड्रल, बिकॉज इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज d2sp3, इज देखिए, और इट इज लेस पैरामैग्नेटिक बिकॉज देर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन, जबकि यहाँ कितने थे, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इट इज स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। जबकि यहाँ एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इट्स सो वीकली पैरामैग्नेटिक। एंड यहाँ जो डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं बेटा, वो इनर डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस, और इनको क्या कहते हैं हम, लो स्पिन कम्प्लेक्सेस, इस देख ले, और स्पिन पेयर्ड कम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज स्टार क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 9.8 एनसीईआरटी पेज नंबर 261 बेटा। क्वेश्चन इज कि एक्सप्लेन हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3 जो है आपका इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है, वेयरएज हेक्साअमाइन निकल 2 आयन जो है दैट इज आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स। अब बेटा आपको इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स पता लग ही गए होंगे। जिनमें इनर डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं दे आर इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस बेटा, और जिनमें आपके आउटर ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, आउटर डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, दे आर योर आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस। सो यहां हमने यही देखना कि कौन से डी ऑर्बिटल जो हैं दे आर इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन। सो इन केस ऑफ योर हेक्सा कोबाल्ट 3 आयन बेटा, हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3 आयन, आपका कोबाल्ट की जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 27 बेटा। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d7 बेटा। सो 4 इलेक्ट्रॉन्स इन s ऑर्बिटल एंड 7 इन योर d ऑर्बिटल्स बेटा। सो कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ दैट इज +3 बेटा, ठीक है। सो कोबाल्ट इन +3 ऑक्सीडेशन से तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके s से गए और एक आपका यहाँ से गया, तो अब बेटा यहाँ कितने रह गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट इन द d ऑर्बिटल बेटा। इज दैट क्लियर? नाउ अब योर दिस इज योर यू कैन से, जब आपका अमोनिया जो है व्हेन दैट इज अप्रोचिंग दिस सेंट्रल मेटल आयन हियर, तो यहाँ क्या हो रहा है बेटा, इनकी पेयरिंग हो रही है। इस देख ले, जब पेयरिंग हो रही है तो आपके ये 2 डी ऑर्बिटल्स यहाँ वैकेंट हो गए बेटा, तो एक s और एक 3 p जो है आपके दे आर वैकेंट ऑर्बिटल्स हियर। तो ये वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, दे विल इंटरमिक्स टुगेदर टू गिव यू द d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस देख ले, और ये क्या होंगे, 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स ये देगा कौन, कोबाल्ट 3 आयन बेटा, क्लियर। और ये क्या करेंगे, दे विल ओवरलैप विद द फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ दीज लिगेंड्स दैट इज अमोनिया हियर। अगर आप देखें बेटा यहाँ हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 है, तो मीन्स योर ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल, और these d orbitals here they are all having paired electrons, that's why it is a diamagnetic. So beta, लेकिन our question is कि that is a inner orbital complex और outer orbital complex। यहां था कि question is कि explain this is inner orbital complex। So beta यहाँ जो d orbitals involved हैं they are your inner
n-1 d orbitals are involved here. n है यहाँ कितना, n यहाँ बेटा 4 है, और यहाँ इसका n ये क्या है आपके d orbitals कौन से इन्वॉल्व है यहाँ 3d, तो दैट इज n-1 d orbitals are involved here. So that's why it is a inner orbital complex बेटा. जबकि बेटा इन हेक्साअमाइन निकल 2 आयन, इसमें जो आपके d orbitals इन्वॉल्व हैं वो कौन से हैं बेटा, आउटर d orbitals आर इन्वॉल्व. ठीक है, दैट इज n d orbitals आर इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन. चलिए उसको भी बेटा इसी तरह करेंगे आप. निकल का एटॉमिक नंबर जो 28 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 4s2 3d8 बेटा. 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, d में 8 हैं बेटा. सो नाउ यहाँ जो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है इस कम्प्लेक्स में दैट इज +2 बेटा. सो आपका क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जाएंगे 4s से, और जब 4s से जा रहे हैं तो 3d में कितने रह गए 8 इलेक्ट्रॉन्स. अब बेटा जब अमोनिया आपका अप्रोच कर रहा है, देन हियर व्हाट इज हैपनिंग, द पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट टेकिंग प्लेस इन केस ऑफ योर निकल 2 पॉजिटिव आयन. इज दैट क्लियर? जबकि यहाँ आपकी क्या हो रही है पेयरिंग हो रही है बेटा, जबकि यहाँ पेयरिंग नहीं हो रही है. इज दैट क्लियर? सो बेटा यहाँ जो आपके हाइब्रिडाइजेशन में जो आपके d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे वो कौन से होंगे, n d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे. n मीन्स n यहाँ 4 है बेटा, तो ये जो d ऑर्बिटल्स हैं ये कौन से हैं 4d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में. तो एक s 3p और 2d ऑर्बिटल्स यहाँ इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, और हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या रहेगी sp3d2. इज दैट क्लियर? सो बेटा जब आपके हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स है. सिंस देयर आर द 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. सो दिस इज outer orbital complex beta, because outer d orbitals are involved, means nd orbitals are involved in the hybridization, or this is also said to be a high spin complex or spin free complex. Hope students this is clear. So beta इन दोनों में ये किया है कि कोबाल्ट के केस में आपकी पेयरिंग हो रही है और आपके निकल के केस में आपकी पेयरिंग नहीं हो रही है. दैट्स व्हाई योर आउटर d orbitals are involved in hybridization. Is that clear? In this case, whereas inner d orbitals are involved in this case beta. So hope this is clear. So next star question is question number 9.9. NCERT page number 261 beta. Predict the number of unpaired electrons in the square planar complex, that is टेट्रासाइनाइडोप्लैटिनेट 2 आयन. बेटा आई थिंक अब नेमिंग का लेक्चर भी आपका हो चुका है, नेमिंग भी आपको क्लियर होनी चाहिए. जिस तरह मैं बोल रहा हूँ टेट्रासाइनाइडोप्लैटिनेट 2 आयन बेटा, तो प्लैटिनम की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2 है. इस देख लिया. अब आपको बेटा ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए जिस तरह हमने डिस्कस किया. ओके, सो टेट्रासाइनाइडो प्लैटिनेट 2 आयन. सो बेटा यहाँ जो एटॉमिक नंबर है बेटा प्लैटिनम का दैट इज 78. तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी बेटा 6s2 5d9. तो 6s में 1 इलेक्ट्रॉन है और 5d में कितने हैं बेटा आपके 9 इलेक्ट्रॉन्स है. 6s में 1 इलेक्ट्रॉन और 5d में 9 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. इज दैट क्लियर? अब बेटा साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. जब ये आपका अप्रोच करेगा तो व्हाट विल हैपन, द पेयरिंग विल टेक प्लेस इन दिस केस. इज दैट क्लियर? सो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा यहां चला जाएगा. सो नाउ दिस ऑर्बिटल विल बी वेकेंट हियर. सो नाउ दिस d orbitals, this d orbital is vacant now. This d orbital and this s orbital or दो p orbitals जो हैं they will intermix together to give you the dsp2 hybridization. क्यों? क्योंकि आपके बेटा सिर्फ हमें क्या चाहिए 4 ही वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए. तो एक d एक s और 2 p ऑर्बिटल जो हैं they will intermix together to give you 4 dsp2 hybridized orbitals, or they will overlap with the field orbitals of the this cyanide ligand बेटा. Is that clear? अब नाउ बेटा यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज dsp2 बेटा. तो ज्योमेट्री भी हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा. ज्योमेट्री विल बी स्क्वायर प्लेनर बेटा, और यहाँ कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. अब नाउ क्वेश्चन इज प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. सो बेटा देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सिंस देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा in the d orbital, so now this is diamagnetic. Is that clear? And this complex is square planar.
So beta, always remember, when hybridization is sp3, tetrahedral geometry is there. When it is dsp2, then it is your square planar complex beta. When it is your sp3d2, then it is your octahedral complex. Sometimes beta, hybridization is your d2sp3, or sometimes it is your sp3d2. So sp3d2 is your outer d orbitals are involved beta, so they are said to be high spin complexes, और यू कैन से आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस. और जबकि d2sp3 में क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, और इसमें n-1 d ऑर्बिटल जो है दैट इज इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन. होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर. होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर. सो विद दिस, थैंक यू. होप यू हैव एंजॉयड द टुडेज लेक्चर. सो बेटा, जो भी हमने क्वेश्चन किए इनको अपने हाथ से करने की कोशिश करें, so that you can understand in a better way. So beta, subscribe my channel so that I can give you the best lecture in future also. You will get all the chapters in the coming time beta. Keep liking beta, keep sharing, keep subscribing my channel. So thank you. Hope you have enjoyed.